So, good morning everyone. So, in last class we discussed two formulas. First one is cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. This is our first formula which we have derived. And using the first formula, we got the second formula. Cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. Is it clear to all of you? Yes. Right. अब आते हैं साइन पे आते हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा. ये होता है, ये पता है सभी को? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. तो आई एम रिप्लेसिंग थीटा विद साइन ऑफ a प्लस बी. आई एम रिप्लेसिंग थीटा विद a प्लस बी. देन इट विल बिकम साइन ऑफ a प्लस बी. क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं. तो सेम थिंग आई विल डू हियर आल्सो. पाई बाई 2 माइनस a माइनस b. क्लियर है? तो now consider this one as alpha and this is our beta. So it will become cos of alpha minus beta. And what is cos of alpha minus beta? Cos alpha cos beta plus minus here minus sin formula having plus. So it will become cos alpha into cos beta, right? Plus sin alpha, or sin alpha means pi by 2 minus a into sin beta. Is it clear to you? सभी को? Right. So do you know cos of pi by 2 minus a? Sin a. It will become sin a into cos b plus plus cos a into sin b. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो आपने देखा आपका इसके साथ ये मैच कर रहा है क्या? बोलो भाई. कोई किसी के साथ नहीं मैच कर रहा है. देखो cos of a plus b क्या है? cos a cos b minus sin a sin b. यहाँ पर sin of a plus b क्या आ गया है? Sin A into cos b plus cos a into sin b. They are totally different. क्लियर है? चलो इसी का एक और फॉर्मूला देखते हैं. रिप्लेसिंग b by माइनस b. तो b को माइनस b से रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे? साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ माइनस b प्लस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ माइनस b. यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया है? जस्ट b को माइनस b से रिप्लेस कर दिया है, राइट? तो ये क्या बन जाएगा हमारा? तो cos of minus theta, cos of minus theta, cos theta, and sin of minus theta, minus sin theta. तो देखो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट एज इट इज रह जाएगा. ये हमारा पॉजिटिव एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? cos of a into minus of sin b. And this minus will multiplied with plus. It will give minus. So it will become sin a into cos b minus cos a into sin b. Clear है? So our new two formulas are, first one is here and second one is here. कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट है आपका tan ऑफ a प्लस बी. देखो कैसे आता है.
tan ऑफ a प्लस बी। अगर मुझे tan थीटा लिखना रहे साइन और कॉस के टर्म में तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाय कॉस। साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? ए प्लस बी। तो क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी। यस, वेरी गुड। तो इट विल बिकम साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos a plus b. And do you know sin of a plus b? Yes. What is it? Sin A into cos B plus cos A into sin B plus cos A Into sin b divided by cos डिनोमिनेटर का पार्ट बोलो। cos A into cos B minus sin A. sin A into sin B. Sin b. Till here, anyone has any doubt? No. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos A into cos B. क्लियर है? तो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम साइन ऑफ A cos B प्लस cos A sin B डिवाइडेड बाय cos A into cos B whole divided by cos A cos B minus sin A sin A sin B sin B whole divided by cos A into cos B. cos B. Clear? It is clear to all of you? Now separate them. Means this first part will be divided by this thing. So it will become sin A cos B divided by cos A sin B. So cos B gets cancelled, or you can write sin A cos B divided by cos A cos B plus cos A sin B divided by cos A. This AC means sin A and this CA means हाँ. Sometimes I will write in a short form, so try to understand. This is the same as sin A and cos A. Okay, so it will become cos A cos B whole divided by cos A cos B divided by cos A cos B minus sin A sin B divided by cos A cos B. ये equal to sin. Here it will come, not here. Clear है? लोअर पोर्शन आ रहा है ना? चलो, तो some terms are cancelled here. Cos B gets cancelled. Here cos A gets cancelled. Here cos A gets cancelled. Cos B gets cancelled. Clear? No. तो sin A upon cos A become tan A tan A plus sin B upon cos B tan B tan B divided by. Can you tell what is remaining here? 1. Very good. This is your 1 minus sin A upon cos A become tan A and sin B upon cos B will become tan B. So this is the new formula for tan of A plus B. Clear? किसी को कोई डाउट? कॉपी कीजिए. So हमने क्या क्या फॉर्मूला देखा? ये एक इसका सेकंड पार्ट देखा. tan of A plus B हमने क्या देखा था? tan A minus tan ओए, B. tan A plus tan B था. tan A plus 1 minus 1 minus tan A into tan B. tan B. तो सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगा? रिप्लेसिंग B by minus B. So it will become tan of A minus B. This is equal to tan A plus tan of minus B divided by 1 minus tan A into
tan of minus b. Is it clear to all of you? तो ये क्या बन जाएगा, आपको पता है tan of minus theta क्या होता है, minus tan theta. So it will become tan a minus tan b divided by 1 minus tan a, और tan of minus b will become minus tan b, and this minus will multiplied with this minus, so minus into minus becomes Plus. plus, so it will become 1 plus tan a into tan b. So this is our second formula for tan of a minus b. क्लियर है? तो टोटल हमने कितना फार्मूला सीखा, 6 फार्मूला सीखा. कौन कौन सा, साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी. नेक्स्ट इज tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस b. टोटल 6 फार्मूला. till now we have learned through the derivation. Clear है? Now see the application of this formula. तो sin 75. How will I write 75 into sum of two number? 90 minus 20. Yes. There is one way of writing 90 minus 50. Another way, 60 plus yes, 60 plus 15 is another way. Another way, 45 plus 30. So why I am writing only these things, you will come to know shortly. कुछ समय में ही आपको पता चल जाएगा कि हमने 90 minus 15 ना लिख के हमने 45 plus 13 क्यों चूज किया. That you will come to know. Right. So consider this one is A and this is your B. Clear है? चलो, तो ये क्या बन गया हमारा, sin a plus b. तो साइन a प्लस बी आपको पता है, साइन a cos b प्लस Cos a cos a sin b. साइन b. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं. a क्या है, व्हाट इज a, 45, और b क्या है 30. आपको ये दोनों वैल्यू पता है, ये हो जाएगा a will become 45 and b is your 30 डिग्री. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं. अब बताइए साइन 45 का वैल्यू कितना, 1/√2. cos 30 का वैल्यू प्लस cos 45 का वैल्यू और cos 30 का वैल्यू 1/2. क्लियर है? now multiply these two. It will become √3 divided by 2√2 plus 1 divided by 2√2. It will become √3 plus 1 divided by 2√2. ये किसका वैल्यू आया, समझ में आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं. तो सिमिलरली अगर मैं इसका लिखूं साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, Sin of 30 degree minus 45 माइनस 30 लो ना. 45 माइनस 30 लेने से क्या बन जाएगा, आपको साइन 45 पता है, साइन 30 पता है, cos 45 पता है, cos 30 पता है. ये क्या बन जाएगा आपका, अगेन साइन ऑफ a माइनस b, एंड साइन ऑफ a माइनस b इज साइन a cos b माइनस cos a sin b. So it will become sin a sin 45 cos 30 minus cos 30 नहीं cos 45. yes, cos 45. good. तो क्या बन जाएगा ये, sin 45 is 1/√2. cos 30 is √3/2 minus 1/√2 into 1/2. ये क्या बन जाएगा हमारा, √3 minus 1 divided by 2√2. साइन ऑफ 15 डिग्री ये आ गया. तो जनरली डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रहता है, ठीक है. जनरली मतलब अगर आप ब्रॉड सेंस में देखो तो इरेशनल नंबर शुड नॉट बी प्रेजेंट एट डिनोमिनेटर. सो ट्राई टू रिमूव द
irrational number using the rationalization. So it will become root 3 minus 1 divided by 2 root 2 root 2 root 2. So it will become root 3 into root 2 become root 6 minus root 2 divided by 2 to the 4. Either you can remember root 3 minus 1 divided by 2 root 2. This is our original value. ठीक है, और रेशनलाइजेशन करने के बाद रूट 6 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4. समझ में आया? क्लियर है? तो ये हमारा हो गया. तो सिमिलरली आप cos 15 और cos 75 का वैल्यू निकालिए. तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला प्रूफ किया ना. ओए उस तरह से ना कर. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने सीखा है ना. बस मुझे यही दो वैल्यू याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है. ठीक है, ओनली रिमेंबर दिस टू वैल्यूज, ऑटोमेटिकली अदर वैल्यू विल कम यूजिंग दिस टू. अरे आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, हमने एक फार्मूला डिराइव किया, एक फार्मूला से हमने 6 फार्मूला निकाल दिया कि नहीं. आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हम एक एक फार्मूला को डिराइव कर रहे हैं. नहीं, हमने एक फार्मूला डिराइव किया और बाकी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, उसके थ्रू हमने सॉल्व कर दिया. ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे cos 15 डिग्री, तो cos 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा? sin 90 माइनस 15. तो कितना बन जाएगा? sin 90 माइनस 15. ये कितना बन जाएगा? 90 माइनस 15 इज 75. ये ऑलरेडी आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिख दिया है. अब बताओ sin 75 का वैल्यू आपको नहीं पता है? सोचो, सब लोग 30 प्लस 45 कर रहा है. यस, वो भी आंसर सही है, लेकिन आप हर बार इस तरह से करोगे क्या? नहीं, तो फिर आपने जो सीखा है वो पूरा क्वाड्रेंट का जो सीखा है तो कब यूज करोगे? जब इसी तरह से आप हमेशा करते रहोगे. तो नेक्स्ट आ जाओ, cos 75 डिग्री. तो cos 75 को क्या लिखोगे? sin of 90 माइनस 75. तो sin of 90 माइनस 75 इज cos, सॉरी sin 90 माइनस 75 इज cos 75 हो जाएगा. अरे sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. थीटा क्या है? 75. तो इधर भी 75 हो गया. अब ये क्या बन जाएगा आपका? sin 15 डिग्री. और sin 15 डिग्री का वैल्यू आपको पता है? बोलो. रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2. ये हमारा sin 15 का वैल्यू है. तो sin 15 इज इक्वल टू cos 75. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं. चलो अब tan वाला पे आते हैं. तो अगर मुझे tan 15 डिग्री लिखना रहे, तुम क्या लिखेंगे? tan 15 डिग्री sin 15 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 15 डिग्री. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं. You know sin 15? Yes. Root 3 minus 1 divided by 2 root 2. Cos 15? Root 3 plus 1 divided by 2 root 2. 2 root 2 gets cancelled. तो remaining में क्या बचा? Root 3 minus 1 divided by, again denominator है irrational number. तो rationalize करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1. जैसा न्यूमरेटर उसका अपोजिट साइन यूज करते हैं ना. ये क्या बन जाएगा? रूट 3 वही तो माइनस होता है. यहाँ पे माइनस हो गया. यस, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस हो जाएगा. यहाँ पर भी माइनस. ठीक है, तो इट विल बिकम रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर divided by a plus b, a minus b. It will become a square minus b square. तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. और ये क्या बन जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2. क्लियर है? ये क्या बन जाएगा? 4 minus 2 root 3 divided by 2. Take 2 common. Yes. So it will become 2 minus root 3 divided by 2. 2 gets cancelled. Remaining
रिमेनिंग इज minus 2 minus रूट 3। क्लियर है? तो ये किसका वैल्यू आया? tan 15 डिग्री का है। तो tan 75 डिग्री आप निकाल सकते हो, फाइंड कीजिए। सो tan 75 डिग्री इज अगेन sin 75 divided by cos 75. This is equal to root 3 plus 1 divided by 2 root 2 whole divided by root 3 minus 1 divided by 2 root 2. So root 2 gets cancelled. It will become root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. Do rationalization. You will get the answer 2 plus root 3. Clear है? कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब आप फिर से वापस अपना फार्मूला पे आते हैं। हमने क्या क्या फार्मूला सीखा था? फर्स्ट फार्मूला हमने सीखा साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए cos b minus cos a sin b. Next formula is cos of a plus b. तो cos of a plus b क्या हो जाएगा? cos b minus sin a sin a sin b. Next आ जाओ, cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? पक्का? हैं? चलो तो अब क्या इसमें हम करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो ये दोनों को हमने ऐड किया तो राइट हैंड साइड भी ऐड करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड आप ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बना हमारा? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। देखो ना ये दोनों को ऐड करेंगे ना, सेम टर्म sin a cos b अगर दो सेम टर्म रहेगा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 1 plus 1 2, it will become 2 sin a cos b। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। आप सबट्रैक्ट कीजिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा? मुझे क्या मिलेगा? साइन ऑफ ए प्लस बी और सबट्रैक्ट किसको कर रहा है? इसको सबट्रैक्ट कर रहा है ना, तो ये माइनस वाला आप में चला जाएगा ना। ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। तो अब इस पर सबट्रैक्ट करेंगे तो बताओ कौन सा पार्ट कैंसिल होगा? साइन ए कॉस बी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। देखो ना अगर यहाँ पर हम माइनस साइन लगाते हैं तो ये हमारा प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस ये दोनों सेम है और आपस में माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा मेरा? 2 cos a sin cos a sin b। क्लियर है? ये बात समझ में आया? तो ये हमारा न्यू फार्मूला बन गया। फिर से देख रहे हो हमने बेसिक फार्मूला को यूज करते हुए वैरायटी ऑफ फार्मूला हम फॉर्म कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट आ जाओ, सेम प्रोसेस इक्वेशन 2 3 और इक्वेशन 4 के लिए कीजिए। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a यस 2 cos a cos b। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, अगेन फिर से क्या कीजिए? सबट्रैक्ट कीजिए।
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम, नहीं इक्वेशन 4 करो, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इज इक्वल टू, बताइए क्या मिलेगा। नहीं इस बार सोचो, -2 हो जाएगा ना, देखो ना यहाँ पर अगर हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे माइनस तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्लस एंड माइनस, लेकिन ये दोनों तो ऐड हो जाएगा ना और माइनस साइन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा -2 साइन ए इंटू साइन बी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, क्लियर है, गुड, कॉपी कीजिए। तो अभी हमने क्या सीखा था, हमने सीखा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने सीखा अभी। सेकंड फॉर्मूला क्या था, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, कॉस ऑफ ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू -2 साइन ए साइन बी। यहाँ तक हमने सीखा था। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। हम चेंजेस क्या कर रहे हैं, कंसीडर a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो इससे मुझे a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा मुझे c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। अब जो भी हमारा a प्लस डी को c से रिप्लेस करेंगे, a को रिप्लेस करेंगे c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ये बात समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं। सेकंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। हाँ, एक बार कंप्लीट करने दो। cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 साइन यस -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है। देखो, तो अगर मैं एक क्वेश्चन इस पे लेता हूँ तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है साइन 25 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो आप ये ना पता लगा पाओ कि हमको a प्लस बी में क्या लिखना चाहिए, आप पता लगा पाओगे? क्योंकि 25 को लिखने का तो बहुत सारा तरीका है ना, 1 प्लस 24, 2 प्लस 23, है कि नहीं तरीका लिखने का। हम कौन सा मेथड यूज करें कि हमारा आंसर सही आ जाए, है कोई तरीका? नहीं। तो इसी वजह से हमने क्या किया, a प्लस बी को c में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला के हिसाब से, साइन c प्लस साइन d। तो साइन c प्लस साइन d क्या होता है, देखो साइन c प्लस साइन d इज
2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. It will become 2 sin 25 plus 15 divided by 2 cos 25 minus 15 divided by 2. So it will become 2. 25 plus 15 is 40. 40 divided by 2, 20. So it will become sin 20 into cos 10 divided by 2 is 5. हो जाएगा 5. समझ में आया क्यों इसका जरूरत पड़ा मुझे? अदरवाइज आप कर पाते? नहीं कर पाते. अगर मैं डायरेक्टली ये वाला फार्मूला बोलता यूज करने के लिए तो आप नहीं कर पाते. ये वाला फार्मूला कब हम यूज करेंगे ये भी सीखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन आपका एक दिया हुआ है साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री. इसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपका फार्मूला में क्या है 2 है, लेकिन क्वेश्चन में 2 नहीं है. तो हमको 2 लाना है तो क्या करना पड़ेगा सच दैट कि हमारा 2 भी आ जाए और हमारा एक्सप्रेशन भी चेंज ना हो. अरे LHS है कहाँ? नहीं वो तो फार्मूला है ना. हमको क्वेश्चन में 2 इम्प्लीमेंट करना है. यस, इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा 2 भी आ गया और हमारा एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुआ है कि नहीं. तो इस तरह से दिमाग लगा लगा के सॉल्व करना है. ठीक है ना. तो 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ 35 डिग्री कॉस ऑफ 25 डिग्री. क्लियर है. तो ये 1/2 को बाहर ले लीजिए और ये 2 साइन 35 कॉस 25. तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. तो 1/2 साइन ए प्लस बी कीजिए. ये हो जाएगा 35 प्लस 25 प्लस साइन 35 माइनस 25. 1/2 साइन ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 60 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री. क्लियर है कैसे सॉल्व करना है, जो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है. हाँ या ना? यस सर. गुड. बताओ. एक आपने सीखा साइन 50, आपको साइन 30 पता था, साइन 45 भी पता था, साइन 60 भी पता था और साइन 75 भी सीखा आपने. राइट. ये 2 नया वैल्यू सीखा साइन का. सिमिलरली कॉस का भी 15 डिग्री और 75 डिग्री सीखा. सिमिलरली टेन का भी आपने 15 डिग्री और 75 डिग्री का सीखा. ये भूलोगे नहीं कोई भी. अब अगर आपसे कोई पूछा जाए तो आप बता दोगे आराम से. इसमें कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो हाँ या ना. कोई कंफ्यूजन नहीं. चलो. अगर सर आपके मन में दिमाग में ये नहीं आता कि सर ये 2 डिफरेंट एंगल को आप ले रहे हैं, मतलब ए और बी ले रहे हैं, अगर दोनों सेम हो जाएगा तो क्या होगा? दोनों अगर सेम हो जाएगा तो क्या होगा? ओए हम कुछ सेम का मतलब होता है 2 एंगल सेम होना, नॉट 2 एंगल 0 होना. यस, ए प्लस ए. तो अगर यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. व्हेन ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा साइन ऑफ ए प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन. ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया. तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट में साइन 2a इज इक्वल टू, देखो तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं क्या 2 साइन ए कॉस ए. कोई कंफ्यूजन? तो इसको हम और भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा.
ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले पे आ जाओ। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है। अगेन दोनों को सेम कर देते हैं। A is equal to When a is equal to b, it will become cos a plus a is equal to cos a into cos a minus sin a into sin b. तो cos a into cos a become x into x become, cos X square. square. तो ये क्या बन जाएगा? Cos A square minus sin sin a square a। क्लियर है? और लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? ये cos 2। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? इसको हम लिख देते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos square theta हाँ यस, हमने इस बार a को भी थीटा से रिप्लेस कर दिया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया? चल, अब इसी को थोड़ा और डिराइव करते हैं। क्यों इसमें हम इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। दिख रहा है कितना सारा इसमें? देखो बहुत सारा इसमें फॉर्मूला बनेगा, एक दो फॉर्मूला नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अगर आप देखते हो इसी का ही दूसरा फॉर्म देखो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अब इसको आप ओपन कीजिए तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या बना? cos 2 थीटा। तो इट विल बिकम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इट विल बिकम cos 2 थीटा। क्लियर है? ये एक फार्मूला बना। नेक्स्ट फार्मूला क्या बन जाएगा? इसी से डिराइव होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कॉपी कीजिए सारा। एक और 10 वाला देख लो पहले, उसके बाद कॉपी करना। तो आपके पास पता है tan ऑफ a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। Make both angle equal. When a is equal to b, so it will become tan a plus a is equal to tan a plus tan a divided by 1 minus into tan a. So a plus a become 2a. So it will become tan 2a is equal to 2 tan a divided by 1 minus tan a square. In general, tan 2 theta is equal to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta.
स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो हमारा ये मल्टीपल्स एंगल चल रहा है, ठीक है? कॉपी कीजिए सभी लोग। तो आपका एक वैल्यू आया था cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन के टर्म में क्या आया था? साइन के टर्म में बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो हम इसको क्या लिखे थे? 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, ये लिखे थे। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम क्या, हमें चाहिए थीटा इज इक्वल टू 22.5 का मुझे वैल्यू चाहिए, मतलब साइन 22.5 का मुझे वैल्यू चाहिए, साइन 22.5 का वैल्यू चाहिए, ठीक है? डिग्री हाँ डिग्री में। अगर इसको हम रेडियन के टर्म में लिखते तो क्या लिखते बताओ तो? पाई बाई 8 लिखते। पाई बाई 4 से तो 45 हो जाता है, और 45 का और हाफ कीजिए, तो पाई बाई 4 का हाफ करेंगे तो कितना? पाई बाई 4 का हाफ इज पाई बाई 8। ये क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू पता है आपको कितना? 1 बाई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन जाएगा? और 2 को शिफ्ट कीजिए, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो इट विल बिकम √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। 2√2 कोई दिक्कत? ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। क्लियर है? चलो, तो अब हमें क्या मिल गया? साइन पाई बाई 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आपको साइन 22.5 का वैल्यू अगर पूछा जाए तो आप बता दोगे? और ये सिमिलर टाइप का है, किसके साथ सिमिलर है याद करो तो? साइन 15 वाले के साथ। देखो ना कैसे सिमिलर है, डिनोमिनेटर में भी उसमें भी 2√2 था, इसमें भी 2√2 है। चेंजेस कहाँ पे आ रहा है? बस यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। वहाँ पर √3 था, यहाँ पर कितना है? √2। और एक और चेंजेस क्या है? स्क्वायर रूट का। एक और चेंजेस कहाँ पे है? तो स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। पॉइंट क्लियर है? आपका होमवर्क क्या रहेगा? जैसे हमने साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड किया, सिमिलरली आपको cos 22.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, cos 22.5 का और tan 22.5 का। नहीं नॉट रेडियन, डिग्री है सब। रेडियन अरे यूज तो कोई भी कर सकते हैं ना रेडियन। ये हमारा रेडियन मीन्स क्या होता है? ये हो जाता है cos ऑफ पाई बाई 8, ये हो जाता है tan ऑफ पाई बाई 8। रेडियन मीन्स क्या? डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ी ना वैल्यू को हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि हम वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? क्लियर है? पॉज कर।